Hello everyone, welcome back to NetRanker Academy. If you are preparing for UGC NET, JRF, Commerce, BCom or MCom, then your today's videos is extremely important for you because today we are going to cover the complete concept of World Trade Organization in a very simple, exam-oriented and conceptual way. In this single video, you will understand and trust me, after watching this video, your World Trade Organization concept will be crystal clear for NET exam. So watch till the end. Let's start with the basic. WTO stand for World Trade Organization. Let's start. World Trade Organization introduction. The World Trade Organization is an international organization that regulates and facilitates international trade between countries, and it ensures smooth, predictable and free flow of goods and trade. तो इन सिंपल वे में समझे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के बीच में इंटरनेशनल बिजनेस को नियंत्रित और सुगम बनाती है। एंड एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका? 1 जनवरी एंड 1995 एंड हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्ज़रलैंड में। किसको रिप्लेस किया था? रिप्लेस गैट। गैट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। 1947 में एस्टेब्लिशमेंट किया था गैट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द मराकेश एग्रीमेंट मोरक्को साइन ऑन। कब साइन किया गया था? 15 अप्रैल 1994 को। और इफेक्टिव फॉर्म में कब आया था? 1 जनवरी 1995 को। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द उर्ग्वे राउंड। ये 8 राउंड था जिसको उर्ग्वे राउंड बोला जाता है। एंड 1986 से 1994 में नेगोशिएशंस हुआ था। यह उर्ग्वे राउंड 1986-1994 का परिणाम था। आगे हम देखते हैं difference between GATT and World Trade Organization. GATT, first point is establishment in 1947 and World Trade Organization establishment in 1995 and temporary agreement. GATT is a temporary agreement and World Trade Organization is a permanent organization. And a GATT is only trade in goods and World Trade Organization is trade in goods, services and IP intellectual property. And a GATT no strong dispute systems and a World Trade Organization is a strong dispute settlement. GATT एक टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन थी एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कवर करता है। एंड आगे देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव प्रमोट ट्रेड, फ्री ट्रेड एंड रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, ensure fair competition and resolve trade disputes and promote economic growth. And a principle of World Trade Organization. First principle is MFN means most favored nation. Equal treatment to all members. सभी देशों को समान व्यापार सुविधा देना। Example, if India reduce tariff for USA and it must reduce for all World Trade Organization members. And a second principle is national treatment means ट्रेड फॉरेन गुड्स सेम एज डोमेस्टिक गुड्स। विदेशी और घरेलू वस्तुओं के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज फ्री ट्रेड, रिड्यूस ट्रेड बैरियर लाइक टैरिफ्स। व्यापार बाधाओं को कम करना। एंड प्रिडिक्टेबिलिटी, ट्रेड रूल्स मस्ट बी प्रिडिक्टेबल। व्यापार नियम स्थिर होने चाहिए। एंड फिफ्थ प्रिंसिपल इज फेयर कंपटीशन, नो अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले आएगा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज़ द हाईएस्ट बॉडी, दिस इज़ द PYQ जनरल काउंसिल्स। एंड अ थर्ड इज डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी एंड अ फोर्थ इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी एंड अ फिफ्थ काउंसिल फॉर गुड्स सर्विसेज एंड IP इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज मेजर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट with very important for UGC NET JRF. And the first agreement is GATT, General Agreement of Tariffs and Trade. Years 194 establishment and trade in goods agreement. वस्तुओं के व्यापार से संबंधित समझौता करता है। And the second agreement is GATT's General Agreements on Trade in Services. Year 1995 trade in services like banking, education. And the third agreement is TRIPS means trade related intellectual property rights
एंड ईयर 1995 एंड प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा करता है, एग्जाम्पल पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। एंड फोर्थ एग्रीमेंट इज ट्रिम्स ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर ईयर्स 1995 रूल फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश से संबंधित नियम बनाता है। एंड फिफ्थ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ईयर्स 1995 एग्रीकल्चर ट्रेड रूल्स, कृषि व्यापार से संबंधित। इट्स 3 पिलर्स, फर्स्ट इज मार्केट एक्सेस and second is domestic support and third is export subsidies and a sixth agreement on subsidies and countervailing measures, कंट्रोल सब्सिडीज़, क्या करता है, सब्सिडीज़ को कंट्रोल करता है। एंड सेवन्थ एग्रीमेंट इज़ एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, ये क्या करता है, प्रिवेंट डंपिंग को रोकता है। एंड एट स्टेप इज़ एग्रीमेंट ऑन सेफ गार्ड्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम इम्पोर्ट सर्ज, जो आयात वृद्धि से सुरक्षा देता है। एंड नाइन्थ एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, टेक्निकल रेगुलेशंस रूल्स को बनाता है। एंड टेंथ इज सैनिटरी एंड साइकोसेंट्री एग्रीमेंट, फूड सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड, खाद्य सुरक्षा मानक देता है। एंड 11th इज डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग, मैकेनिज्म टू रिजोल्व डिस्प्यूट, विवाद समाधान प्रणाली होती है। एंड 9th इज उरुग्वे राउंड, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ PYQ पीरियड 186 to 1994, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड से बना है, उरुग्वे राउंड से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है। एंड अगर हम इनको शॉर्ट समरी में देखें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट इन 1995 थ्रू Mercosur agreement regulate global trade, include agreement like GATT, streams, AO, agreement on agriculture। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई और यह वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करती है। एंड कंक्लूजन इज so today we covered the complete concept of World Trade Organization in a structural and exam oriented way. If video help you understand World Trade Organization clearly, then like the video, share with your friends and subscribe to Net Ranker Academy for more high quality net preparation content. In the next video we will cover another important international trade topic. Thank you for watching and keep studying and keep growing. Thank you.